First of all, sign in with your email account and password. Go to labs and tests. Then create a new test. Go to quiz and add title. It means this is your subject. Let us suppose we have an subject English. Then create now. This screen will appear. First, write down the interest, whatever you want to get guessed. If you don't have any interest listed here, you can add the new test. Suppose I am adding title grammar. After adding this interest skill grammar, you select the grammar, then save. It has been updated. After that, go to capture. Here you can enter the name, email, or if you want to add some other field, you can also add. Suppose I am going to add number and one more field. Next is drop down menu. After adding two fields, click on number to edit. Number can be replaced with roll number. The number type, select whole number. Minimum value is 1. Maximum value, the number of students you have in class. And in drop down menu, you may add the number of sections you have. Suppose I have 4 sections on the name of option 1, option 2, option 3 and option 4. Let me enter the original sections. After adding all these sections, click do not submit, click update. After updating, make one more thing to remember, that make these selection as mandatory, same as we did in Google Forms. Click the section as mandatory, then updating again. Now the all credits will be entered. After that, you may enter the instructions. Now we have multiple type of instructions given by default. First, like the default instruction, then lock and track instruction, then image ready instructions. Delete the unnecessary lines which is repeated on every type of anti-cheating mechanism. Suppose I am deleting this line because this is repeated here also, and this line also repeated here. You must need to delete all these unnecessary lines. After that, in this checkbox, you can customize that what you want to be entered. I always try to enter. It might be I have gone through instruction carefully and ready to begin. You may customize this line
which student can read on submitting the questions. Now update this. When anything is updated, it will be turned into green color. Then click on the shield. Sorry, one more thing. Total time will be displayed onto the screen to the students, total number of questions and maximum points. You can do not select or toggle this number of categories because we did not select any category so far. Click lock and track only. Maximum allowed you want. It is better to keep this 10 and 10. Save this. After all these things, that means we configure everything from kickstart to shields. Now go to questions. Now this is the screen where we will have to create questions. First, create the first question. Now इस स्क्रीन में हमें इंडिविजुअल क्वेश्चन, ग्रुप क्वेश्चन और चैट दिए। आपको सिर्फ इंडिविजुअल क्वेश्चन पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन टाइप, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं। जनरली इसमें हम सिंगल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स या सॉर्टिंग देते हैं। तो हम सिंगल चॉइस को क्लिक करते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो आप इजी, मीडियम और हार्ड में रख सकते हैं। अभी मैं इसे एक इजी में ले रहा हूँ। कैटेगरी अगर नहीं है तो आप इसे ऐड में क्लिक करेंगे। ऐड में करने के बाद सपोज वी हैव, कुछ भी आप इसे कीवर्ड ले सकते हैं। राइट, you can add any new category. This is for your members. Add new. Select this category. On subcategory. This is not optional, but you can write any category as per your convenience. Now this is drop down list, this is also drop down list, this is selected by yourself. अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है। मान लीजिए इंग्लिश का एक क्वेश्चन लिखता हूँ। What is nail? After giving this question, you will have to give options to the students. मतलब आपको ऑप्शंस देने हैं बच्चों को कि जितने भी ऑप्शंस चाहे आप इसे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं मान लो 4 ऑप्शंस देता हूँ, इस चारों सिलेक्शंस में से मुझे अभी ही राइट आंसर को सिलेक्ट करना होगा। सपोज मेरा आंसर ए है, मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे मुझे सेव करना है। जैसे ही मैं सेव करूँगा क्वेश्चन यहाँ पे सेव हो जाएगा और ये ग्रीन कलर में कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये दिखना है कि मेरा क्वेश्चन बन चुका है कि नहीं, तो मैं मैनेज में जाऊँगा। तो यहाँ पे इस कैटेगरी में ईजी में एक क्वेश्चन आ गया है। ऐसे ही आप किसी मीडियम कैटेगरी में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाल सकते हैं और हार्ड कैटेगरी में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अब इसके बाद आप चाहें तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस डाल सकते हैं। क्वेश्चन टाइप आप दोबारा सिंगल करेंगे। डिफिकल्टी लेवल अगर आप मीडियम चाहें आप मीडियम सेलेक्ट करें। उसके बाद आंसर में भी लिख सकते हैं। ऑप्शन दीजिए जितने भी ऑप्शन चाहते हैं। सपोज मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हैं। और इसका आंसर मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसे सब अपडेट कर दिया। जैसे ही अपडेट में जाऊंगा और अब आप मैनेज में देखें तो एक क्वेश्चन इजी का क्रिएट हो गया और एक क्वेश्चन मीडियम का।
इसी तरह से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन हार्ड में दे सकते हैं, तो टोटल क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को मिलेंगे वो 2 होंगे। उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट कर लें, उसके बाद लास्ट में हमारे पास थर्ड पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन का। यहाँ पे जाके आप जो टेस्ट है इसे डिसाइड करना है आपने कब टेस्ट दे रहे हैं बच्चों को। अब कंपटीशन मोड को आप पब्लिश करना चाहते हैं इस टेस्ट को, तो आपको इसे कंपटीशन मोड में क्लिक करना होगा। जैसे आप इसे कंपटीशन मोड में सेलेक्ट करते हैं, इसमें टाइम आ जाएगा कि आपको कब टेस्ट बच्चों को देना है। सपोज मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक आज 8 अक्टूबर को शाम को 6 बजे से स्टार्ट होके टेस्ट जो है वो 7 बजे तक रहे, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा 8 तारीख यानी कि आज 8 अक्टूबर, स्टार्ट 18 आवर्स मतलब 6 बजे, और फिर एंड 17 मतलब 7 बजे यानी कि 19 आवर्स। ठीक है, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा आपके पास। तो यानी कि ये लिंक जो एक्टिवेट होगा सिर्फ 1 घंटे के लिए होगा। इसके बाद आपने पब्लिश करना है। जैसे आप इस टेस्ट को पब्लिश करते हैं, एक यूआरएल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ये टेस्ट का लिंक क्रिएट हो गया। यहाँ पे जब टेस्ट का लिंक क्रिएट हो जाएगा, आप इसे कॉपी करें और अपने आप को या तो व्हाट्सएप कर लें या मेल कर लें। ठीक है, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, जैसे ये टेस्ट पब्लिश हो जाएगा तो आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करें। उसके बाद इस लिंक को कॉपी करने के बाद अपने आप को मेल कर लें या व्हाट्सएप कर लें। ये सारा काम अब टेस्ट बन चुका है और पब्लिश भी हो गया है। पब्लिश होने के बाद आप स्टूडेंट्स को कभी भी ये टेस्ट पोस्ट कर सकते हैं 6 बजे से पहले। जब भी आप इसे पोस्ट करेंगे तो ये स्टार्ट 6 बजे ही होगा 8 अक्टूबर को। कोई भी स्टूडेंट इस लिंक के अंदर नहीं जा सकता जब तक कि टाइम शेड्यूल स्टार्ट ना हुआ हो। इसके बाद आप रिपोर्ट्स में जा सकते हैं। रिपोर्ट्स में ये स्क्रीन तब स्टार्ट हो जाएगी जब स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे होंगे। जैसे ही आप टेस्ट स्टार्ट होता है तो इसमें इस स्क्रीन पर कितने स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं, कितनों ने कंप्लीट कर लिया है, किन्होंने पहले बंद कर दिया है या फिर किसी चीटिंग की वजह से वो डिनाइड हो गए या बार्ड हो गए, यहाँ पे आएगा। और ये तो रियल टाइम सिस्टम है। इसके बाद अटेम्प्ट्स में आप जाएं। अटेम्प्ट्स में भी यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी, नेम, ईमेल, उनका टाइम, स्टेटस, परसेंटेज, रैंक, टोटल स्कोर। आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी स्क्रीन पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो आप जितने स्टूडेंट्स इस स्क्रीन पे हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसे एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएंगी ये सब चीज़ें एक्सेल में। यहाँ पे कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एडिट करना चाहें तो इसे एक्सेल में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब किसी अगर स्टूडेंट की आपने एक रिजल्ट देखना है तो जिस स्टूडेंट को आप यहां पे आएंगे, जो भी स्टूडेंट यहां पे लिस्टेड होंगे, जैसा कि इस टेस्ट में आपको दिख रहा है, यहां पे इस टाइम कोई भी स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे रहा और 100 बच्चों ने कंप्लीट कर लिया। 11 इसमें अबेंडेंट है। अबेंडेंट का मतलब किसी ने टाइम से पहले सबमिट कर दिया है या किसी अपनी मर्जी से वो सबमिट कर सकता है। ये बार्ड है, यानी कि कुछ चीटिंग की वजह से इनको टेस्ट डिनाई हो गया है। यहाँ पे आप अटेम्प्ट्स में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कितने स्टूडेंट्स टेस्ट दे चुके हैं। आप किसी भी स्टूडेंट को क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं कि उसकी रिपोर्ट क्या है। यहां से पता लग जाएगा कि उन्होंने किस गलती की वजह से यहां पे वॉयलेशन आई है।